आंधी भी आएगी और तूफान भी आएगा, उस पर ही ठहरेंगे और स्वयं चला जाएगा। डट कर सहने की बातें तू, डट कर सहने की बातें तू, कहता चल पुरानी रे चलता चल। Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th of January every year. On 26th January 1950, our constitution was implemented. Before this day, the British law was followed in India. It took 2 years, 11 months and 80 days for the constitution to be made. It was adopted on 26 November 1949. The drafting committee of the constitution and president of it was Rajendra Prasad and the chairman was Bhimrao Ambedkar. मेरा नाम रक्षिता कुमारी और आज मैं गणतंत्र दिवस पे कुछ शब्द बोलने वाली हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग देशभक्ति की भावना रखकर विद्यालय, कॉलेजेस एवं अपने सरकारी दफ्तरों पे तिरंगा को हाथ में लेकर जाते हैं। वे बहुत ही जोश के साथ तिरंगा को फहराते हैं। सभी स्कूलों कॉलेजेस में तरह तरह के नृत्य कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम एवं विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दिन बच्चों में मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। सभी लोग बहुत ही जोशीले होते हैं और अपने देश के प्रति उनमें जागरूकता आती है। I wanna introduce myself. My name is Abhijit Kumar from class 8A, and today I am delivering a speech on 20th Republic Day. Republic Day is one of the best days in India because the Constitution was came into force on this day. In first, Rajendra Prasad and B.R. Ambedkar tried to make the Constitution, but they can't. And with the help of many members of the society, they make the Constitution very well. And by this, we have very benefits like under the law of equality, freedom, etc., etc. Thank you. और आज का विषय है गणतंत्र दिवस। ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन सभी कॉलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। सभी बच्चे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, गाने भी गाते हैं देशभक्ति से रिलेटेड। थैंक यू। I am Vishnu Kumar from class 8A. First of all, thank you Acharya for giving me this golden opportunity to say something on the topic Republic Day. On this day, our constitution was implemented for the first time. Our constitution was made after the efforts of 2 years, 11 months and 18 days. On this day, the President of India holds the flag in Red Fort. Dr. B.R. Ambedkar is called the father of Constitution. We celebrate this day as a festival. We also host a flag on Republic Day and sing national anthem. Jai Gana Mani. Thank you. Have a nice day. Today I got a golden opportunity to say some lines on Republic Day. Republic Day is a national festival of India. It is celebrated on 26 January every year. It was first celebrated on 26 January 1950 because our constitution implemented on that day. Our constitution takes 3 years, 11 months and 18 days to complete. Thank you. Of class 8. Today's topic is Republic Day. We celebrate Republic Day every year on 26th of January. In this day, our country implemented the Constitution. Before this day, British law was followed. It took 2 years, 11 months and 18 days.
Thank you. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यह कहावत बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमारे घरों में बहुत पहले से कही जा रही है, पर यह कथन आजकल गलत होता साबित हो रहा है, क्योंकि खेल कूद में बच्चे आगे जाकर बहुत सारे ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बहुत सारे अवसरों को प्राप्त होते हैं। आजकल कुछ बच्चों को पढ़ाई में रुचि नहीं होती, पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। वो बच्चे खेल में जाकर बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आजकल पूरे दुनिया में फुटबॉल एक बहुत ही प्रसिद्ध गेम है, जिससे कि खेलना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन टीवी का ज़माना है, तो आजकल सभी लोग घर में डूबके हुए रहते हैं और मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को कम से कम दिन में 2 से 3 घंटा ग्राउंड में जाकर बिताना चाहिए समय, और आउटडोर गेम खेलना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब खेलना चाहिए। अगर आजकल हम लोग भारत में देखेंगे तो क्रिकेट बहुत ही भारत में खेलने वाला एक प्रसिद्ध खेल है, और यहाँ पर सभी गली घरों में सभी बच्चे इस खेल को एक ना एक बार अवश्य खेले होंगे। इसी तरह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध खेल है फुटबॉल। जैसे कि भारत में क्रिकेट खेला जाता है, उसी तरह दुनिया के बहुत जगह कोने में फुटबॉल खेला जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी को लेकिन राष्ट्रीय खेल तो मान लिया गया, पर हॉकी को खेलना बहुत कम लोग ही जानते हैं। सभी लोग क्रिकेट के ही दीवाने हैं, और क्रिकेट के बारे में ही सभी लोग बहुत सारे जानते हैं। हॉकी में तो किसी को ये भी पता हो कि कितने प्लेयर खेलते हैं, पर क्रिकेट मुझे तो 15-20 प्लेयर के नाम भी गिना देंगे। और भारत में ही क्रिकेट के बारे में बहुत सारे ट्रॉफी आयोजन होते रहते हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, ये सब होते रहते हैं। धन्यवाद। हरिओम, मैं भैया दीपांशु कुमार कक्षा 9 आज से आपके सामने आया हूँ खेल के महत्व के बारे में बताने के लिए। खेल खेलना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। खेल लेकिन नियमित रूप से खेलना चाहिए। कभी लोग क्या करते हैं, रात में, दिन में, सुबह में, जब टाइम मिलता है तब खेलने लगते हैं। कभी क्लास में, कभी बेड पे बैठे तो बेड पे ही खेलना शुरू कर दिए। वैसा खेल नहीं खेलना चाहिए। खेलने का भी एक नियम होना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो एक आदमी इधर से फेंकता है, एक बैट से मारता है तो कैच करता है, विकेट पीछे में रहता है, 3 उस पर लगता है तो आउट होता है। कई लोग बिना विकेट के खेलना शुरू कर देते हैं। और एक भारत में बहुत मशहूर खेल है मुन्ना का बच्चा। हंसने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। आँख में पट्टी बांध लेते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। हो सकता है मान लीजिए ट्रैक्टर या उस पर टकरा गए, उड़ जाएंगे, छुटमुट का खत्म। तो ऐसे नहीं खेलना चाहिए। ये सब खेल बंद जगहों पर खेलते हैं, जहाँ पर चोट उट ना लगे। और खेल नियमित रूप से खेलना चाहिए, जिसमें शरीर का विकास हो, ना कि शरीर की क्षति हो। धन्यवाद। विद्या में पढ़ती हूँ। मैं आज गणतंत्र दिवस के बारे में सुनाने जा रही हूँ। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय नियम संविधान हुआ था। यह दिवस 1950 से मनाया जा रहा है, और यह दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इस दिवस में विद्यालय, महाविद्यालय हर जगह कार्यक्रम होता है, और विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हर इस दिवस में झंडा फहराते हैं। थैंक यू। All of you, my name is Ayan Kran from class 10C, and today I am going to give a speech on the importance of games and sports. So first of all, what is the main difference between game and sport? The games are the activities that are played by the people to be fit and fine in their daily life to do their work. And sports, they are played only outdoors, but the games are played in the outdoor and indoor. The advantages of game and sports are they keep us fit and fine. They regulate the blood in all parts of our body. They reduce the fat amount in our body, and also give us a resistance of speed and various activities performed in the ground.
the games are of two types. The game advantage of games are of two types: mental and physical. So the mental advantage of game are achieved by playing chess or card games. It develops the IQ level of a person, which help in improvement of study. It initial for a student to be fit and fine and grow his IQ level. So he can achieve this by doing game and sports. Thank you. Have a nice day.